کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین السلام علیکم۔ تمام عاشقان رسول اور تمام عالم انسانیت کو سرکار علیہ السلام کی یوم ولادت کی بہت بہت مبارکباد۔ ناظرین، جو لوگ بھی جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں، ان کا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ بھلے ہی ہم لوگ حضور علیہ السلام کو نہیں دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے، یا ان کو اپنی کانوں سے نہیں سن رہے ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سن بھی رہے ہیں۔ امام محمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ عاشقان رسول، جب ہم کبھی کسی کی یوم ولادت کا جشن مناتے ہیں تو جشن منانے کے ساتھ ساتھ جس کی ولادت ہوتی ہے، جس کا برتھ ڈے ہوتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیتے ہیں، اور جب تحفہ دینے کا انتخاب کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا دیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا دیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ اس انسان کو، اس شخص کو کیا پسند ہے، اور اس پسند کے حساب سے ہم تحفے کا انتخاب کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کل 12 ربیع الشریف کی بابرکت تاریخ ہے، اور یہ پورا مہینہ ہی عاشقان رسول سرکار علیہ السلام کی آمد کا جشن مناتے ہیں، اور منانا بھی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف جشن منانے بھر سے ہو جائے گا، یا کچھ یوم ولادت کے موقع پر ہم کچھ تحفے کا بھی انتظام کریں؟ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، بد عمل ہیں، بدنیت ہیں، سب کچھ ہے، اور ہم لوگ اس لائق نہیں ہیں کہ ہم تحفے میں کچھ دے سکیں اپنے آقا علیہ السلام کو، جن کے ہم لوگ امتی ہیں، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ آئیے آقا علیہ السلام کی زندگی پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں، اور بہت لمبی گفتگو نہیں کریں گے، وقت دامنگیر ہے اور لوگ بہت دیر تک سنتے بھی نہیں ہیں، تو بہت جلدی جلدی چند باتیں کریں گے آپ سے۔ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو آقا علیہ السلام کی پرورش ماں حلیمہ کے ہاں ہوئی، تو جب ماں حلیمہ نے بتایا کہ آقا علیہ السلام ایک پستان مبارک سے دودھ نوش فرماتے تھے، اور جب ماں حلیمہ ان کو دوسرے پستان کی طرف لے جاتی تھی تو وہ دودھ نہیں نوش فرماتے تھے۔ ایک چھوٹی سی عمر میں آقا علیہ السلام نے دنیا کو یہ بتایا کہ آپ اپنے بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ جس پستان سے آقا علیہ السلام دودھ پیتے تھے، دودھ نوش فرماتے تھے، آپ علیہ السلام صرف اسی پستان سے دودھ لیتے تھے۔ جب بھی ماں حلیمہ دوسرے پستان کی طرف لے جاتی، آپ انکار کر دیتے تھے، کیونکہ اس پستان سے ماں حلیمہ کے جو اپنے بائیولوجیکل بیٹے تھے وہ دودھ نوش فرماتے تھے، تو وہ آقا علیہ السلام کے دودھ والے بھائی ہوئے۔ تو آقا علیہ السلام اس پستان سے دودھ نہیں پیتے تھے، اور دودھ نہ پی کر آپ علیہ السلام نے دنیا کو یہ بتایا کہ کیسے بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے اور کسی کا حق نہیں مارنا ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، جب آپ علیہ السلام حضرت آمنہ کے شکم میں تھے تو آپ کے والد اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اور جب آپ کی عمر شریف صرف 6 برس کی تھی تب حضرت بی بی آمنہ کا بھی وصال ہو گیا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ایک بار فرمایا کہ
अगर मैं नमाज की हालत में होता अगर मैं नमाज की हालत में होता और मेरी माँ पर्दे के पीछे से आवाज़ देती मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ के दौड़ा चला जाता उनके कदमों में। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक मज़दूर का मज़दूरी उसके पसीना सूखने से पहले पहले अदा कर दी जाए। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है और आपने खाना खाया है तो वो खाना हराम है। आइए हम और आप देखते हैं इन बस चंद बातों में कि क्या हमारा ईमान है, क्या हमारा अक़ीदा है इस मामले में। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अब सवाल ये है कि हम जश्न विलादत के मौके पर जो जुलूस निकलेगा उसमें हम शिरकत करेंगे, हम बहुत नारे भी लगाएंगे, हम जहाँ जहाँ भी मिलाद की महफ़िल सजेगी वहाँ पे तशरीफ़ लेके जाएंगे और जाना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपने दिल में नियत करें कि अल्लाह तू बड़ा गफ़ूरुर रहीम है, तू माफ़ करने वाला है, और अपने आप से पूछें कि क्या हमने अपने भाइयों का हक़ नहीं दबाया है, क्या हमसे किसी का हक़ नहीं मारा गया है। अगर मारा गया है तो उस बंदे से अल्लाह से माफ़ी मांग लें, जो हक़ उसका है उसका लौटा दें, और ये दिल में नियत करें कि आका अलैहिस्सलाम हम गुनहगार हैं, हम ख़ताकार हैं, हम बदकार हैं, हम बदनीयत हैं, हम बदअमल हैं, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं और इस विलादत के मौके पर हमने जो हक़ मारा था वो हमने लौटा दिया, और ये एक मेरा नजराना है, एक छोटा सा तोहफ़ा है, आप इसे कबूल कर लीजिए। क्या ऐसा नहीं हुआ है आपकी ज़िंदगी में कि आपने के वालिदैन ने, स्पेशली आपकी वालिदा ने आपको कभी बुलाया है और आपने झल्ला के जवाब न दिया हो? ज़ाहिर सी बात आपने दिया होगा, जबकि इस्लाम में हुक्म है कि आप अपने वालिदैन को उफ़ तक नहीं कर सकते। लेकिन हम लोग कई बार झिड़क देते हैं, बहुत ऊंची लहजे में बात कर लेते हैं। तो आइए इस मौके पर अपने वालिदैन से माफ़ी तलब करें और फिर कहें अल्लाह तू बड़ा गफ़ूरुर रहीम है, हमने माँ से माफ़ी मांग ली है, हमने अपने वालिद साहब से माफ़ी मांग ली है, और आका अलैहिस्सलाम हम आपको तोहफ़े में ये चीज़ देना चाहते हैं, इस नज़राने को कबूल कर लीजिए। हम बेनमाज़ी, हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब 12 रबीउल शरीफ की तारीख़ हो तो उस दिन सुबह उठें, फ़जर की नमाज़ पढ़ें, फिर जुलूस में जाएं, और जब जुलूस से वापस आएँ तो ज़हर की नमाज़ पढ़ें? ऐसा हो सकता है ना? और ये दिल में नियत करें कि हम बेनमाज़ी हैं, बदअमल हैं, सब ठीक है, लेकिन कम से कम आज के दिन तो आपकी जो आँखों की ठंडक है, आप अलैहिस्सलाम की आँखों की ठंडक, वो काम करेंगे। हमारे पड़ोसियों से बहुत इख्तलाफ हो सकता है, हमारा बीच में ईगो आता होगा कि हम बात नहीं करते हैं, हम बड़े हैं, फलां हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि उस दिन 12 रबीउल शरीफ के दिन आप अपने पड़ोसियों से सलाम करने में पहल कर दें, और दिल में यह ख्याल रखें कि ये नजराना है, ये तोहफ़ा है, आप इसको कबूल कर लीजिए। ऐसा हो सकता है ना? और ऐसा कई सारे लोगों के साथ होगा जिनके यहाँ कोई मज़दूरी किया होगा, घर बनाने में, फ्रिज बनाने में, कूलर बनाने में, बिजली बनाने में, अलग अलग चीज़ों में, या कई लोगों का उन पर कर्ज़ होगा, मज़दूरों की मज़दूरी होगी। जुलूस में जाने से पहले पहले उसको लौटा दें और फिर कहें आका अलैहिस्सलाम हमने आपको तोहफ़े के तौर पे जो हमारे ऊपर इन लोगों की मज़दूरी थी उसको हमने दे दिया। फिर सोचिए आप, तब
कहा जा सकता है कि हाँ, हमने जश्न यौम विलादत मनाया है आका अलैहिस्सलाम की। बेगम शाह लिखते हैं ना कि जी करता है तोहफे में भेजूँ मैं उन्हें आँखें, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। लेकिन हम लोग सिर्फ जुलूस में जाएंगे, नारे लगाएंगे और घर चले आएंगे और समझते हैं कि हमने सवाब का काम कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। और जो सबसे बड़ी दुश्वारी है वो ये है कि हमारे नौजवानों को कोई बताने वाला नहीं है कि जिस तरीके से आप पगड़ी बांधते हैं वो हमारा तरीका है ही नहीं है। ये यहूदियों और ईसाइयों का तरीका है कि सीधे अमामा और पगड़ी बांधते थे। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब हम लोग पगड़ी बांधेंगे, जब हम लोग अमामा पहनेंगे तो पहले टोपी लगाएंगे, फिर अमामा बांधेंगे, फिर पगड़ी बांधेंगे। अगर आप टोपी नहीं लगाते हैं तो ये इस्लाम का तरीका नहीं है। पता चला कि हम काम करने गए थे सवाब के लिए, इस्लाम के लिए, और कर बैठे दूसरों का काम। तो इस बात का भी ख्याल रखें। जब आप 12 रबीउल शरीफ की जुलूस में जाएं तो कोशिश करें कि आप फजर पढ़ें। जुलूस में निकलते वक्त बावज़ू होके जाएं और बहुत आहिस्ता अंदाज में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और नारा लगाते हुए जाएं। जब वापस आएं तो फिर आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। और अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि ना हक़ के लिए उठे वो शमशीर भी फितना, ना हक़ के लिए उठे वो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। तो इस बात का ख्याल रखें कि जब आप जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाएं तो किसी को दुश्वारी नहीं हो, किसी को परेशानी नहीं हो, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन बन के आए थे। सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि जितने भी मखलूक हैं सबके लिए रहमत बना के आए, भेजे गए हैं। सबके लिए रहमत थे और सबके लिए आसानी का मामला फरमाते थे। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप जुलूस में जाएं तो किसी को दुश्वारी परेशानी ना हो। और हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत सैयद अकमल अजमली अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि कोई नहीं पूछेगा, पूछेंगे तो बस आका, कोई नहीं पूछेगा, पूछेंगे तो बस आका, अकमल का सरे महशर इस बात का दावा है। तो ख़याल रखें कि जिस अल्लाह के जिस सबसे महबूब बंदे की यौम विलादत के मौके पर जिस जुलूस में आप जा रहे हैं, कितनी बड़ी हस्ती के जुलूस में आप जा रहे हैं जिसके सदक़े में पूरी कायनात बनी है, तो इस बात का ख़याल रखें। बावज़ू हो के जाएँ, दुरूद व सलाम पढ़ते हुए जाएँ। और नौजवान साथी जो मुंह में गुटखा वगैरह लेके जाते हैं उसका भी ख्याल रखें। और जब भी दस्तार बांधे तो अंदर टोपी पहने, फिर दस्तार बांधे और सुन्नत तरीके से जाएं, ताकि देखने वाला भी ये कहे कि अगर मानने वाले ऐसे हैं तो फिर आका कैसे होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।